میں نے فوراً اپنی بیلٹ نکال کر اپنے ہاتھ پر لپیٹی اور اس آدمی کو گھوسا مارنے چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس کو مارنے نکلا، میں نے پیچھے سے ایک پولیس کار کو آتے دیکھا تو پولیس سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک کچھ ایسا ہوا جیسے کار کا حادثہ تھا۔ ظاہر ہے ہم کار میں سگریٹ نوشی جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ ہم ایک کار کے حادثے میں ملوث تھے، مطلب پولیس آنے والی ہے اور میں جیل جانے والا ہوں۔ پولیس نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں، انہیں بہت دیر ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بھاگ جاؤں اور اپنی کار وہیں چھوڑ دوں کہ چلو کوئی بات نہیں، بعد میں دوسری کار خرید لوں گا۔ ٹھیک میں نے یہی کیا، میں کار چھوڑ کر بھاگ نکلا اور میں اس جنگل نما علاقے میں بھاگ رہا ہوں تاکہ اپنے دوست کے گھر پہنچ کر وہاں چھپ جاؤں۔ یہ ایسا ہے جیسے میں ہالی ووڈ مووی میں ہوں، میں درختوں میں بھاگ رہا ہوں۔ اور بعد میں شکاری کتے آتے ہیں اور ہیلی کاپٹر وغیرہ، لیکن الحمدللہ میں نہیں پکڑا گیا۔ پتا ہے وہ میرا کرائم پارٹنر ہے، وہ بندہ ہے کہ جس کے بیٹے کے ساتھ میں ڈرگز بیچ رہا ہوں۔ ٹھیک اس کے والد نے کہا نیچے تہہ خانے میں انتظار کرو۔ اسی تہہ خانے میں ہم مل کر تفریح کرتے تھے اور جب میں اندر گیا میں نے نوٹ کیا کہ اس کے والد قرآن سن رہے تھے۔ تو پہلا سوال میں نے یہ پوچھا، کیا میں انگریز ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہو سکتا ہوں؟ وہ ہنسے اور انہوں نے کہا بالکل ہو سکتے ہو۔ انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا ہو، چاہے تم گورے ہو یا کالے ہو یا بھورے ہو، اگر جامنی اور گلابی ہو تو بھی مسلمان ہو سکتے ہو۔ ٹھیک اس نے کہا تم مسلمان ہو سکتے ہو۔ السلام علیکم، شیخ عبد الرحیم میکار تھے۔ ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ ہم آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ عبد الرحیم میکار تھے کون ہے؟ کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصراً بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے بلانے کا بہت شکریہ۔ میں امریکہ سے آپ کا بھائی عبد الرحیم میکارتے ہوں۔ میں نے امریکہ میں 1994 میں 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور پھر چند مہینوں بعد تقریباً مسلمان ہونے کے 6 ماہ بعد میں ملک سے باہر سوڈان چلا گیا۔ پھر بعد میں اسلام کی تعلیم حاصل کرنے سعودی عرب چلا گیا۔ میں نے مدینہ میں 10 سال تک تعلیم حاصل کی الحمدللہ، اور مدینہ میں ہی گریجویشن کرنے پر میں نے دعویٰ کا کام شروع کر دیا، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے الہدا ٹی وی، پیس ٹی وی اور دوسرے سیٹلائٹ چینل اور میڈیا کے ساتھ کام کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح پوری دنیا کا سفر کیا، اور آج ہم یہاں ترکی میں آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ عقیدے کے حوالے سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ میں پیدائشی کیتھولک عیسائی تھا، میری پرورش بطور کیتھولک ہی ہوئی۔ ہم کیتھولک چرچ میں تھے، میں دوسری جماعت تک کیتھولک اسکول گیا، حتیٰ کہ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے مجھے اسکول سے نکال دیا تھا، وہ تو مجھے بخشنے کو تیار تھے، لیکن میں خود بھی بہت شرارتی تھا۔ جب میں اسکول میں تھا تو مجھے بہت سی پریشانیوں کا سامنا رہا، نہ صرف چھوٹی عمر میں حتیٰ کہ بعد میں بھی، لیکن ہاں ہم کیتھولک عیسائی کے طور پر پلے بڑے، کچھ ایسا ہی تھا۔ میرا مطلب ہے ہر ہفتے چرچ جانا، خاص طور پر میری دادی اور آنٹی ہمیشہ جاتی تھی، ہم کبھی کبھار جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کوئی خاص موقع ہو تو ہم جاتے تھے، بعض اوقات ہم ہر ہفتے جاتے تاکہ خود کو عیسائی کہلوا سکیں۔ صلیب کا نشان، گھر میں ایک بائبل، آپ کو پتا ہے جیسے صلیب پہننا، تسبیح، یہ سب وہاں تھا۔ تو میرے خیال سے آپ ہمیں کافی مذہبی سمجھ سکتے تھے، مطلب کٹر مذہبی تو نہیں تھے، لیکن ساتھ ہی یہ سب ہماری شناخت کا حصہ تھا اور ہماری روزمرہ زندگی کا معمول۔ کیا آپ کو اپنے عقیدے پر شک تھا؟ سچ کہوں تو واقعی نہیں۔ میرا مطلب ہے یہ کچھ ایسا تھا کہ میں ایک عیسائی کے طور پر پیدا ہوا تھا، ایک کیتھولک کے طور پر ہم ٹرینٹی پر یقین رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے ساتھ ہم بڑے ہوئے تھے اور میں اس پر یقین کرتا تھا، اور مجھے اس کے علاوہ کبھی کوئی دوسرا خیال آیا ہی نہیں۔ صرف ایک بار جب مجھے واقعی اس کے علاوہ کوئی دوسرا خیال تب آیا جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا۔ جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا اور آپ جانتے ہیں میں نے دیکھا اسلامی عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کے معنی کس طرح ہمارے عقیدے اور ٹرینٹی سے متصادم ہے، تب میں نے فوراً سوال کرنا شروع کیا جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا۔ لیکن شروع میں واقعی میرے اندر تضاد نہیں تھا، میرے پاس واقعی کوئی دوسرا خیال نہیں تھا، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ یہ سچ ہے، میں اسی طرح پیدا ہوا، میری پرورش اسی طرح ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ یہ سچ ہے۔ آپ نے اسلام کے بارے میں پہلی بار کیسے سنا؟ یہ تب ہوا جب میں نے میلکم ایکس کتاب پڑھی، میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی، اور پھر اس بایوگرافی پڑھنے کے فوراً بعد میلکم ایکس کے بارے میں فلم آئی جس کی ہدایت کاری اسپائک لی نے کی تھی، اور ظاہر ہے کہ میلکم ایکس کا کردار ڈینزل واشنگٹن نے ادا کیا تھا، اس لیے اس کا مجھ پر بہت گہرا اثر پڑا اور میرے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا جو اب تک گمراہ تھا، اور میں بھی نہ صرف آج کل کے مسلم معیار کے مطابق بلکہ یہاں تک کہ غیر مسلم معیارات کے مطابق ایک گمراہ شخص تھا۔ مجھے اپنی بہن یاد ہے، اس نے کہا کہ آپ معاشرے کے لیے خطرہ ہیں، جیسا کہ ہم عربی میں کہیں گے فی ضلال المبین۔ میں تھا، ہاں آپ جانتے ہیں کہ میں واضح طور پر گمراہ تھا۔
तो जब मैंने देखा कि वो भी ऐसा ही कोई है, बहुत गुमराह, बहुत परेशानी में, और फिर इस्लाम ने उसकी रहनुमाई की और उसे कैसे बदला, उसे नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाया, इससे मेरे दिल में इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा एहतराम पैदा हुआ। उसने मुझे इस्लाम के बारे में भी सवालात करने पर मजबूर किया। लेकिन मेरे और इस्लाम के दरमियान एक रकावट थी जिसको समझना मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। अब भी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बहुत से गैर मुस्लिमों के लिए ऐसी ही रकावटें हैं। इस वक्त उसकी वजह नेशन ऑफ इस्लाम थी, जो कि मैल्कम एक्स का इस्लाम लाने से पहले असल ओरिजिन था। वो कहते थे कि इस्लाम सियाह फामों के लिए है, और ये कि सफेद आदमी शैतान है, आपने ये सुना ही होगा, जबकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्हें मुसलमान के तौर पर जाना जाता है। जबकि अकायद की बात करें तो वो मुसलमान नहीं है, वो नेशन ऑफ इस्लाम के मुताबिक चलते हैं। तो ये एक गलत फहमी थी जो इस जमाने में मीडिया में बहुत फैली हुई थी। मुझे याद है कि नेशन ऑफ इस्लाम का एक मुबलिग था जिसका नाम खालिद मोहम्मद था, जो आप जानते हैं बहुत बाअसर था, और वो उन दिनों उसे खबरों में भेजते थे ताकि ये जाहिर किया जा सके कि ये इस्लाम सियाह फामों का मजहब है और सफेद फाम लोग शैतान हैं। तो ये वो चीज है जो मेरे जहन में थी। तो मैंने फर्ज कर लिया कि मैं मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए ये रकावट मौजूद थी। क्या आप हमें पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? इस्लाम से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मुझे याद है कि इस वक्त मैं 18 साल का था और बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहा था। मैं ड्रग्स बेचने का काम करता था। ये बहुत से लोगों के लिए बहुत हैरान कुन था, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे खानदान से हूँ। मेरा खानदान बहुत कामयाब है, मेरा खानदान अमीर था, तो मुझे जुर्म की जिंदगी में आने की जरूरत नहीं थी। ड्रग्स बेचने की जिंदगी या गैंग लाइफ, मुझे उसमें पड़ने की जरूरत नहीं थी। ताहम हुआ ये कि वो खेल जो मैं खेलता था, आप जानते हैं आज तक मैं कम अज कम उसकी झलकियां देखता हूँ। वो खेल बास्केटबॉल है। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है और ये मैं छोटी उम्र से ही खेलता था और मैं इसमें बहुत अच्छा हो गया था। और अगर आप स्ट्रीट लेवल पर आला सतह का मुकाबला करना चाहते हैं तो ये उमूमी तौर पर अंदरून शहरी कम्युनिटीज में होता है। मेरे ख्याल में अगर आप अमेरिका गए हों, आपने अंदरून शहरों में देखा होगा, आम तौर पर वहाँ ज्यादातर अफ्रीकी नजाद अमरीकी ही खेलते हैं। तो मैं उनके साथ बहुत घुल मिल जाता था, तो उनकी सकाफत का भी मुझ पर बड़ा असर था। और मेरे बहुत से दोस्त अफ्रीकी नजाद अमरीकी थे और ये चीज मुझ पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई। इसलिए उस तर्ज जिंदगी को देखना, इस तर्ज जिंदगी में शामिल होना ही वो चीज थी जिसने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। और आप जानते हैं, इस्लाम में हम हमेशा एक अच्छे दोस्त के इंतखाब की अहमियत पर तवज्जो देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। इस हदीस की ताकत को देखें। उन्होंने कहा कि फर्द अपने दोस्त के मजहब पर है, और न सिर्फ उस पर बल्कि इस फर्द के दीन पर, मजहब पर उसका कितना असर नजर आता है, और जितना आप उसके साथ रहते हैं इतना उसका असर बढ़ता है। और इसी वजह से उन्होंने कहा फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, लिहाजा हर शख्स को वाकई ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती करता है। लिहाजा हमें वाकई तवज्जो मरकूज करनी होगी, और हम अभी उसके बारे में तफसील से बात कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सही दोस्त का इंतखाब करने के बारे में कुरान में आयात हैं, बहुत सी आयात हैं। तो मतलब उस वक्त मेरा बेहतरीन दोस्त वो था जिसकी तर्ज जिंदगी ऐसी थी, हत्ता कि उसका एक कजन जेल में था जिसे सजाए मौत हो गई थी क्योंकि उसने किसी का कत्ल किया था। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो भी इसी किस्म का था। और इस जमाने में जब नशा करना बहुत आम हो चुका था तो ये सब ठीक लगता था, तब जब ये सब इतना आम नहीं था। मुझे याद है कि ये इसके साथ मेरी शुरू की मुलाकातों में से एक थी, और उसने तंबाकू को लिपेटा, जैसे सिगार भी कहते हैं, जिसमें से आप तंबाकू निकालते हैं और नशा आवर चीज का इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा कि सारे गैंगस्टर, सारे ताकतवर लोग, यहाँ के सब लोग सब ये वाला सिगरेट पीते हैं। तो उसने मुझे भी ये दिया। मैं उस वक्त बतौर एथलीट इन चीजों के खिलाफ था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा, लिहाजा मुझे उसके साथ नशे की लत पड़ गई। फिर आप ऐसी तर्ज जिंदगी अपनाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा था कि आप जैसे चाहें वैसा पहन लें, जैसे कीमती कपड़े और ताल्लुकात वगैरह। लिहाजा बतौर एथलीट मैं इन सब चीजों के खिलाफ था, लेकिन ये इस सर्कल के लोगों के लिए आम बात थी। वहाँ सब ऐसे ही कर रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ नशा करना शुरू कर दिया। और हत्ता कि जब बात सिगरेट नोशी पे आई, मैं जो कि सिगरेट नोशी का सख्त मुखालिफ था, लेकिन फिर जब मेरे दोस्त ने सिगरेट नोशी शुरू की तो मैंने भी शुरू कर दी। और फिर शराब नोशी। जाहिर है बतौर आयरिश अमेरिकन ये पहले ही हमारे कल्चर का हिस्सा था। अमरीकी कल्चर के हिसाब से भी कम उम्र में पीना शुरू किया, तो मैं कम उम्री से ही इन सब चीजों में मुलव्विस था, और ये मुझे नीचे गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा था। लिहाजा एक मखसूस तरह से जिंदगी गुजारने के लिए आपको पता है, खास तौर पर जब आप मुखालिफ जेंडर के साथ हो, तो आपके पास कीमती कपड़े होने चाहिए और रईसाना अंदाज़ो अतवार होना चाहिए। मैंने पूछा तो तुम इस तर्ज जिंदगी को किस तरह बरकरार रखते हो? उसने कहा तुमने मेरे कजन और भाई को देखा, इसी तरह से करता हूँ। वो कीमती कारें चलाते हैं और सोना पहनते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लिहाजा मैं इस तर्ज जिंदगी में फंस कर रह गया। शुरू में ये सिर्फ बास्केटबॉल तक महदूद था, लेकिन फिर मैं इस तर्ज जिंदगी में फंस कर रह गया। गलत माहौल में पढ़ने की वजह से स्कूल भी छूट गया। ग्रेड 11 से मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया, हत्ता कि कुछ देर के लिए अगर मैं स्कूल जाता तो मैं अपने साथ पिस्तौल लेकर जाता, क्योंकि वहाँ दूसरे महल्ले के दुश्मन होते जिनके साथ
हमारा झगड़ा चल रहा था। हम आदमियों के जत्थे के साथ आए और उनको अपने ही महल्ले से निकाल दिया, तो ये उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी। तो अब वो बदला लेने की ताक में थे। ये बंदा कौन है? ये गोरा बंदा जो कि कार का ड्राइवर था, वो मुझे जानते थे, लिहाजा उन्होंने मुझे निशाने पर रखा हुआ था। उनको कहा गया था कि वो मुझे मार दें। जैसा कि मैंने बताया है, मुझे कत्ल किया जा रहा था, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे दोस्तों में से एक ने मुझे स्कूल के बाद अपने घर आने की दावत दी और उसने कहा कि तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। उसने अपने बिस्तर के नीचे से एक पिस्तौल निकालकर मुझे दिया। उसने कहा, अब तुम रहोगे या वो रहेंगे, और आप जानते हैं चैम्बर में सिर्फ एक गोली रखना। तो रोजाना जब मैं स्कूल जाता तो अपने बिस्तर के नीचे से पिस्तौल निकालकर अपनी बेल्ट में रख लेता और मैं वहां बैठकर सिर्फ उनके आने का इंतजार करता। एक दफा वो आ गए, लेकिन हम स्कूल से अपने दोस्तों के साथ उनसे दूर भाग गए। तो ये वो तर्ज जिंदगी थी जिसमें उस वक्त मैं फंस गया था। तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली कब आई? वो कौन सा अहम मोड़ था? मैंने महसूस किया कि ये तर्ज जिंदगी बहुत मुख्तसर होगी, लेकिन इसके साथ ही मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मैं उसमें खुश था। सच्ची बात है, आप जानते हैं, ये कुछ ऐसा ही था जिसे वो कहते हैं तुमने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। एक दफा उन्होंने इस बारे में सुना, अगरचे शैतान के साथ कोई ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं हुई और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आप इसको ऐसे ही समझें। आपको महसूस होता है कि या तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे या फिर आप मरने वाले हैं, दो में से कोई एक। ठीक है, आखिर में ऐसा ही नतीजा निकलने वाला है, लेकिन ये सब सिर्फ एक शानदार जिंदगी गुजारने के लिए था। और आपको पता है कि मैं 17 साल की उम्र में एक बहुत अच्छी रकम कमा रहा हूँ, एक दिन के $1000। मैं एक आला आदमी था, मैं कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था, लेकिन मैं दरबदर था। होटलों में क़याम है, घर भी नहीं जा रहा, लिहाजा स्कूल भी नहीं जा रहा। आखिर में स्कूल जाना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं अपनी खुशी से मर्जी की जिंदगी गुजार रहा था। मेरा इस वक्त यही ख्याल था, लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने महसूस किया, ये सोचना शुरू किया कि ये सब चीजें मुझे किसी बड़ी परेशानी में डालने वाली हैं। मुझे याद है कि एक दफा मैं बहुत ज्यादा नशे में था। मेरा ख्याल से मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो कि मेरा जानी दुश्मन था। उस वक्त वो मेरे साथ जो सलूक चाहे कर सकता था, वो मुझे बहुत बुरा मार सकता था और मेरी हालत पतली कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से उसको मुझ पर रहम आ गया। उसने मेरी हालत देखते हुए मुझ पर तरस खाया था। मैं इस वक्त बिल्कुल मदहोश था क्योंकि मैं सिगरेट नोशी और नशा वगैरह करता था। तो उसने मुझे जाने दिया और मुझे ख्याल आया, मैंने कहा मैं कितना कमजोर हो गया हूँ इस सूरत हाल में पढ़कर। मैंने कोई खतरनाक मंशियात नहीं ली थी जैसे कि हीरोइन वगैरह। ये वो चीजें थी जो आप बेचेंगे। मैंने कभी हीरोइन नहीं बेची, लेकिन दूसरी चीजें आप बेचेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैंने कभी ये मंशियात नहीं ली क्योंकि मैंने देख लिया कि ये किस तरह आदमी को कमजोर कर देती हैं। लेकिन सिगरेट नोशी मुझे अच्छी लगी, लिहाजा वो मैं करता था, और अल्कोहल और उस जैसी दूसरी चीजें भी। लेकिन जब मैं इस हद तक मदहोश हो गया कि मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकता था, तो मुझे ख्याल आया कि उसने मुझे खोखला कर दिया है। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और मुझे कमजोर और खोखला होना पसंद नहीं था। तो मैं 18 साल का था जब मैंने बैठकर यह फैसला किया कि देखो, अब मुझे अपने लिए बामकसद जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो मैंने अपने लिए 6 मकसद का तायुन किया, जिनमें से बेशतर अच्छे नहीं थे, लेकिन उनमें से एक मकसद अपनी हराम कमाई में इजाफा भी था। आपको पता है, जैसे मंशियात की गैर कानूनी फरोख्त और मालदार बनना। मैं अपने घर वालों के साथ रह रहा था, तो मुझे एक अच्छी सी कार चाहिए थी। मेरे पास एक मामूली कार थी, तो फिर आपको पता है कि बहुत एहतियात करनी पड़ती है। एक बात ये थी कि मुझे अपने बड़ों से बहुत फायदा मिला, और मैंने हमेशा लोगों को भी बताया, हत्ता कि बतौर मुसलमान भी, कि हमेशा बड़ों की सोहबत से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता तय कर चुके होते हैं, वो इन मसाइल का सामना कर चुके होते हैं। तो उनके तजर्बात से फायदा उठाएं ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं जो उन्होंने की। तो उनका कहना था कि हर वक्त महंगी कार नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि फिर आप पुलिस की नजरों में आ जाएंगे कि ये 17-18 साल का बंदा जो बेरोजगार है, आखिर ये करता क्या है। इसी तरह जैसे किसी ने अपने वालिद से इस्लाम सीखा हो। उन्होंने कहा, मैं 15 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो जैगवार ड्राइव कर रहे थे, वो भी अंदरूनी शहर में। तो पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये बंदा काम क्या करता है, तो यही उन्होंने मुझे सिखाया। इसलिए मैं ऐसे ही ठीक था, लेकिन फिर भी कभी कभार खास मौकों पर आप अच्छी कार पर जाना पसंद करते हैं, तो ये एक अलग बात थी। तो मेरा दूसरा मकसद एक अच्छा सा घर, मेरी अपनी जगह पे। और जाहिर है, अगर आप शादी का ना भी सोचें तो फिर भी जिंदगी में कोई खास फर्द होता है जिससे आपका ताल्लुक हो। और 5वीं चीज मेरी सेहत थी, अपनी सेहत दोबारा बनाना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि शराब नोशी और सिगरेट नोशी ऐसी तमाम चीजों ने मुझ पर मनफी असरात छोड़े हैं। और मुझे कहानी याद है, मैंने कभी ये ऑनलाइन नहीं सुनाई, ये पहली बार कि मैं आप लोगों को ये कहानी इस तरह सुना रहा हूँ। मैं गली से आ रहा था और वहाँ ये 2 मैक्सिकन बंदे थे, मैं और मेरा दोस्त, वही बंदा जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था। तो ये 2 मैक्सिकन बंदे नशे में धुत थे, तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। वो कुछ ऐसे अल्फाज कह रहे थे जो हम कभी नहीं कहेंगे। तो जब उन्होंने ये लफ्ज बोला तो मैंने फौरन अपनी बेल्ट उतारकर अपने हाथ पर लपेट ली और उसको घूंसा मारने चला गया। जैसे ही मैं उसको मारने जा रहा था, मैंने पीछे से पुलिस कार आते देखी। तो पुलिस सब कुछ देख रही थी। ठीक है, मैंने बंदे को घूंसा मारा और उसने शराब की बोतल दे मारी, और फिर मैं भाग निकला क्योंकि मैंने पुलिस को देख लिया। मैं स्कूल के आसपास भाग रहा था, ये वो इलाका था जहां हम बड़े हुए। ठीक, तो मैं पहले भी इस इलाके में दौड़ता भागता था, क्योंकि पहले जब हम छोटे थे तो एथलीट थे। अगर पुलिस हमारे पीछे आती तो हम जंगले के पास आकर इसको किसी खरगोश या हिरन की तरह फलांग कर आसानी से पार कर लेते। लेकिन अब क्योंकि मैं सिगरेट नोशी करता था, जब मैं जंगले के पास पहुंचा तो मेरा दम घुट रहा था, लिहाजा मुझे बैठकर थोड़ी देर
दम लेना पड़ा। लेकिन पुलिस इन 2 मैक्सिकन बंदों के साथ मसरूफ थी तो वो हमें नहीं पकड़ सके। ठीक है, बहरहाल हम फिर भी फरार होने के काबिल थे, लेकिन मैंने कहा अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं सेहतमंद नहीं रहा, तो इसलिए मैं अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहता था, मतलब ताकतवर बनना चाहता था। और छठा मकसद ये था कि मजहब की तरफ ध्यान देना। पता है, मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने खालिक से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। लेकिन मजहबी होने से मेरी मुराद ये थी, जैसे मैंने माफिया में बंदे देखे थे, वो पूरा हफ्ता माफिया की सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं, इतवार को चर्च जाते हैं, थोड़ा बहुत सदका करते हैं, चर्च को खैरात देते हैं और शायद कम्युनिटी में लोगों की मदद करते हैं और अल्लाह ताला से अपना थोड़ा बहुत ताल्लुक कायम रखते हैं, और फिर इसके बाद हफ्ते के 6 दिन जहन्नम के होते हैं। तो मैं भी मजहब के हवाले से यही कुछ करने जा रहा था, बाइबल पढ़ना। जैसे कि मेरे पास एक सोने की जंजीर थी जिसमें एक सलीब थी, तो मजहब के हवाले से मेरा नुक्ता नजर ये था। तो मजहब का आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मैं किस हद तक अकीदतमंद बनना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपनी जिंदगी के रूहानी पहलू पर भी तवज्जो देनी थी, तो इसलिए मैंने 6ठे नंबर पर इसको रखा। तो फिर इस फहरस्त और आपको हिदायत नसीब होने में ज़रूर कोई रब्त मौजूद है। इस्लाम की तरफ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं, लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफर करें। तो फिर इस फहरस्त और आपको हिदायत नसीब होने में जरूर कोई रब्त मौजूद है। इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी वजह से अच्छी साबित हुई और 6ठा नंबर पहले नंबर पर आ गया, और ये तब हुआ जब मैं वाशिंगटन डीसी में अंदरूनी शहर अपने एक दोस्त के वालिद से मिलने गया जो कि अफ्रीकी निजात अमरीकी थे। वो मेरा क्राइम पार्टनर था। ये बंदा है जिसके बेटे के साथ मैं ड्रग्स बेचता हूँ। ठीक, तो मैं इससे मिलने गया, वो वहां नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तहखाने में जाकर उसका इंतजार कर लो। उन दिनों की बात है जब प्ले स्टेशन के बजाय सेगा होता था। ठीक, वो एक भुलक्कड़ इंसान था, ये मेरे लिए अच्छा था। वो ये अपॉइंटमेंट भूल गया और मैं बैठा इंतजार करता रहा। उसके वालिद ने कहा नीचे तहखाने में जाकर इंतजार करो जहां अक्सर हम तफरी के लिए आते थे। उन्होंने कहा तब तक तुम सेगा के साथ खेल सकते हो जो कि आजकल प्ले स्टेशन होता है। ठीक, तो जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो वहां कुछ ना था। वो उसे अपनी माँ के घर ले गया था, तो मैं वहां बैठा वाकई बोर हो गया, और जैसे मैं अंदर आया था मैंने नोट किया कि उसके वालिद कुरान सुन रहे थे। वो कुरान सुन रहे थे और क्या वो मुसलमान थे? जी हाँ, उसके वालिद मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो अरबी में कुरान सुन रहे थे। जब कारी अरबी पढ़ता तो उसके बाद अंग्रेजी तर्जुमा भी सुनाई देता। वो कुरान के इस अंग्रेजी तर्जुमे के पैरवी कर रहे थे। और मैंने आपको क्या बताया था वो मत भूलिएगा, मैल्कम एक्स। तो मेरे जहन में ये था इस्लाम। तो मैं वहां बैठा हुआ था, मुझे इस्लाम के बारे में याद आया। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और गौर से सुनना शुरू किया। फिर मैं अंदर गया और मैंने कहा देखें, अगर बुरा ना माने तो मैं आपके साथ बैठ जाऊं, मैं आपसे इस्लाम के बारे में चंद सवालात पूछना चाहता हूं। उसने कहा आगे आ जाओ। तो मैंने पहली दफा उसकी जायनमाज पर कदम रखा, अपने जूतों समेत, टिम्बरलैंड के जूतों समेत। तो उसने कहा ओ ये जायनमाज है, तुम इस पर कदम नहीं रख सकते। मुझे नहीं पता था, तो मैं बैठ गया। और पहला सवाल जो मैंने पूछा, क्या मैं मुसलमान हो सकता हूँ? क्योंकि जो गलतफहमी मुझे अब है वही गलतफहमी अब लोगों को है कि मुसलमान दहशतगर्द, बुनियाद परस्त और शिद्दत पसंद होते हैं। तो मेरी गलतफहमी इस हद तक ना थी, लेकिन नेशन ऑफ इस्लाम के हवाले से बहुत ज्यादा थी कि सिर्फ काले लोग हैं और गोरे लोग मुसलमान नहीं हो सकते। तो मैंने कहा क्या बतौर अंग्रेज में मुसलमान हो सकता हूँ? वो हंस पड़ा। उसने कहा बिल्कुल हो सकते हो। उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रंगत क्या है, चाहे तुम गोरे हो, काले हो या भूरे हो, हत्ता कि जामनी और गुलाबी भी हो जाओ तो भी तुम मुसलमान हो सकते हो। ठीक, उसने कहा तुम मुसलमान हो सकते हो और इस्लाम हर एक के लिए है। उसने मुझे इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत बताया। मैंने कहा ये तो बहुत दिलचस्प है कि आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसे मैं पढ़ सकूं, और यही है जो हम हमेशा नौजवानों को बताते हैं। तो वो हैरान रह जाते हैं। मैं एक गैंगस्टर की जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन हम मुताल्ला भी करते हैं। हम बाजारी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन हम मुताल्ला भी करते हैं। मैंने मैल्कम एक्स पर लिखी किताब पढ़ी। कुछ खास किताबें तो लाजमी पढ़नी चाहिए, जैसे आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली की दी प्रिंस। मेरा मतलब है इन किताबों का खास मकसद है, लेकिन ये आपको पढ़नी चाहिए। तो हम मुताल्ला किया करते थे। तो मैंने उनसे कहा अगर आपके पास इस्लाम के बारे में किताबें हैं तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में 4 किताबें दी। मैंने वो ले ली और उन्हें शेल्फ में रख दिया। मैंने इस बारे में पढ़ा था कि मुसलमानों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है। जाहिर है यही वो बुनियादी चीज़ थी जो मैं देखना चाहता था। मैं मेट्रो पर वापस जा रहा था। मैंने इस बारे में तकरीबन 20 से 30 मिनट का मुताल्ला किया, फिर मैंने इसको साइड पर रख दिया। सुभान अल्लाह, फिर चीज़ें खुद वकू पजीर हुई। जब आपको हिदायत की तलब होती है, जब आपको रहनुमाई दरकार होती है, तो चाहे आप मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह ताला हर एक को निशानियां भेज देता है। अल्लाह ताला आप पर आगाही के दरवाजे खोल देता है। और बहुत से लोग, जैसे आप दावत देते हैं, लोग आएंगे और फिर कहते हैं कि हम किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो हकीकत यह है कि अगर आज आप यहाँ आए हैं तो ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर हमारे पास आखिर में वक्त हुआ तो मैं आपको एक 6 साल बच्ची की शानदार कहानी सुनाऊंगा जिससे मैं हाल ही में मिला। उसकी और उसकी माँ की शानदार कहानी है, सुभान अल्लाह, उनके इस्लाम कबूल करने की। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार आपने इस्लाम कबूल कर लिया?
लिहाजा 2 महीने बाद एक कार एक्सीडेंट जैसा वाकया हुआ। मैं ड्राइविंग कर रहा था, मेरा लाइसेंस मुअत्तल हो चुका था। ये तब की बात है जब तस्वीर नहीं होती थी। वो आपकी तमाम मालूमात, सिक्योरिटी नंबर या आईडी नंबर सब कुछ टाइप करते थे। वो टाइप करते थे, फिर तफसील मिलती थी। इन दिनों आपको कंप्यूटर पर किसी बंदी की तस्वीर नजर नहीं आ सकती थी, वहां सिर्फ ज़बानी मालूमात होती थी, कद, वजन और बालों का रंग वगैरह। तो मेरा एक दोस्त का कद और बालों का रंग मुझसे मिलता था, इसलिए जब भी मुझे रोका जाता तो मैं उसका नाम इस्तेमाल करता था। ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं सिर्फ जुर्माना अदा करके अपना लाइसेंस वापस हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने ये अभी तक नहीं किया था, इसलिए मैं उसका लाइसेंस इस्तेमाल कर रहा था। और जाहिर है हम कार में सिगरेट नोशी भी कर रहे थे, नशा वगैरह। तो हमसे एक एक्सीडेंट हो गया, पुलिस आने वाली है, मैं जेल जाने वाला हूँ। ये वाज़ेह था कि मैं इसका लाइसेंस इस्तेमाल करके इसके नाम से गिरफ्तारी नहीं दे सकता था। तो जैसा कि मैं पुलिस के आने का इंतजार कर रहा हूँ, ये इलाका पुलिस वालों से भरा पड़ा हुआ है, जराइम का इलाका था। पुलिस नहीं आई, पता नहीं क्यों, उन्हें बहुत देर हो गई। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कार को यहीं छोड़कर भाग जाऊं, अभी चला जाता हूं और बाद में दूसरी कार खरीद लूंगा। ठीक, फिर मैंने यही किया, कार छोड़ी और भाग निकला। और मैं उस जंगल नुमा इलाके में भाग रहा हूं ताकि अपने दोस्त के घर पहुंचकर वहां छुप सकूं। ये ऐसा था जैसे मैं किसी हॉलीवुड मूवी में भाग रहा हूं। मैं दरख्तों में भाग रहा हूं, बाद में शिकारी कुत्ते आए, हेलीकॉप्टर आए, लेकिन मैं नहीं पकड़ा गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि दूसरी कार खरीदने तक मैं कार से महरूम हो गया। मैं अपने दादा दादी के घर में था और वो लोग आपको पता है कि पुराने ख्यालात के थे, वहां करने को कुछ नहीं था। बहुत उकताहट महसूस होती थी, तो मुझे किताबों का ख्याल आया। मेरे पास इस्लाम के बारे में किताबें मौजूद थी। मेरे मकासद में नंबर 6 पर मजहबी इंसान बनना था। चलें मजहब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने इस्लाम के बारे में इन 4 किताबों को ढूंढा, जिसमें से एक का नाम था द रिलीजन ऑफ ट्रुथ, और मैं यही देखना चाहता था। तो मैंने वो किताब खोली और इस किताब ने मुझे शुरू से ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने इसी रात को ये किताब पढ़ ली। जुमेरात का दिन था और जुम्मे की रात थी। जुमेरात की शाम से लेकर रात तक मैंने अव्वल व आखिर पूरी किताब पढ़ डाली। ये 70-80 सफ़हात पर मुश्तमिल थी। मैंने पूरी किताब एक नशिस्त में पढ़ ली और मुझ पर 4 बातें आश्कार हुई, जिसका मुझ पर गहरा असर हुआ। पहली बात तौहीद थी, इस्लामी वहदानियत, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने मेरी आंखें खोल दी। मुसलमानों के अकीदे और हमारे ईसाइयत के अकीदे का बुनियादी फ़र्क, ट्रिनिटी का मसला, और ये भी कि वो कहते हैं कि बतौर मुसलमान आपके और खालिक के दरमियान राब्ते के लिए किसी दरमियानी सहारे की ज़रूरत नहीं। आपके और अल्लाह के माबैन आप बराह रास्त अल्लाह से राब्ता कर सकते हैं। जबकि ईसाइयत और कैथोलिज्म में हमें चर्च जाना पड़ेगा और अपने गुनाहों का एतराफ़ करना होगा। मुझे नहीं पता आपने पहले देखा होगा या नहीं, एक छोटे से बॉक्स में एक छोटी सी खिड़की, जिसमें से आप दूसरी जानिब खड़े एक पादरी को बामुश्किल देख सकते हैं, और मुझे जाकर इस आदमी को उन तमाम गुनाहों और बुरी बातों का बताना होता है जो मैंने किए, मतलब मेरी ज़ाती गंदगी, जैसे मैं वाकई उसको दे रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम जो कोई भी हो। लेकिन इस्लाम में हम माफ़ी के लिए बराह रास्त खालिक के पास जाते हैं, किसी दरमियानी राब्ते की ज़रूरत नहीं होती। तो इस बात का मुझ पर गहरा असर हुआ। यही असल चीज़ थी। इसके बाद 3 और चीज़ें जो मेरे जहन में अटक गईं। उनमें से एक उन्होंने नमाज की तैयारी के बारे में बताई। उन्होंने कहा जब तुम नमाज की तैयारी करो, उन्होंने कहा मुसलमान सतर का ख्याल रखता है, सबके सामने टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करता और बैठकर इस्तेमाल करता है ताकि उसके कपड़े नापाक ना हो। उसका भी मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। बहुत से लोग अक्सर इसका एहसास नहीं करते। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल पर एक सिख की वीडियो है जो कि मुसलमान होना चाहता था, और उसके लिए रहनुमाई किसी बात में थी कि उसके कुलीग ने सुन्नत के मुताबिक ट्राउजर के पांचे टखनों से ऊपर रखे थे। ये वाकई फैशनेबल लोगों का फैशन बन गया, लेकिन इन दिनों ये फैशन नहीं था। तो उसने पूछा कि तुम अपना ट्राउजर टखनों से ऊपर क्यों रखते हो? उसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था और हमें भी ऐसे ही पहनने के लिए फरमाया। तो उसने कहा ये लोग अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर तामील करते हैं। उसने कहा मुझे मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत थी। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना शुरू किया और उसे इस्लाम से मोहब्बत हो गई और वो इस्लाम कबूल करना चाहता था। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। तो कहने का मतलब है कि जब मैंने इस नापाकी के बारे में पढ़ा तो बतौर गैर मुस्लिम बहुत बेचैनी महसूस करने लगा। हर चंद के ये बचपन से हमारी रिवायत थी कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर टॉयलेट इस्तेमाल करते थे। मुझे महसूस होता था कि ये वाकई बहुत ज़ाती होता है। जैसे कि आप देखें मगरिब में गैर मुस्लिम करते हैं। मौसम कैसा है? आज कुछ ज़्यादा ही ठंड नहीं? क्या तुमने कल वो गेम देखी? तो मैं कहता कि इन बातों का वक्त नहीं है। ठीक, ये एक ज़ाती वक्त है, खुद पर तवज्जो दें। तो मुझे बहुत उलझन होती थी। तो मैंने देखा मुसलमान ऐसा नहीं करते, बल्कि वो अलग जगह पर जाते हैं। और ये एक चीज़ नीचे बैठने वाली रिवायत को हमारे यहाँ हिकारत से देखा जाता था। अगर आप बैठते हैं तो आप मर्द नहीं, सिर्फ औरतें बैठती हैं। मुझे बैठने की रिवायत में ज़्यादा सहूलत महसूस हुई। मैंने सोचा कि हम ख्वाह-मख्वाह खड़े होकर खुद को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं, नीचे बैठना ज़्यादा आसान है। लिहाजा उस वक्त से मैं नीचे बैठने का ही एहतमाम करता हूँ। जब से मुझे पता चला कि मुसलमान भी ऐसा करते हैं, उसका मुझ पर गहरा असर हुआ। और मुझे याद है कि कुछ देर पहले हम एक कहानी के बारे में बात कर रहे थे, मगरिब में एक औरत के बारे में। वो तकरीबन 20 सालों से तालिबे इल्मों के कपड़े धोती थी। उसने नोट किया कि तमाम तालिबे इल्मों के अंडरवियर्स पर धब्बे होते थे, नापाकी के धब्बे, गिलाजत या पेशाब के, क्योंकि हकीकत ये थी कि लोग अपनी तहरत पानी से नहीं करते थे और नीचे नहीं बैठते थे। अगर आप नीचे नहीं बैठते और पानी से खुद को पाक नहीं करते तो आपके कपड़ों पर नापाकी लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही होता था। लिहाजा उसने नोट किया कि एक तालिबे इल्म जो कि मुसलमान था, उसके कपड़े नापाक नहीं होते थे। ये उसके लिए एक मुअम्मा बन गया। जब भी वो आता, वो हर हफ्ते उसके अंडरवियर्स देखती तो वो हमेशा साफ सुथरे होते। उसको यकीन नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो खातून ने उससे पूछ लिया ये क्या है।
میں نے 20 سالوں میں کبھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہ اس لیے کیونکہ میں مسلمان ہوں، اور اسلام نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم نیچے بیٹھتے ہیں اور پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس بات کا اس پر گہرا اثر ہوا، اسی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ، صرف اس طریقے سے یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز اسلامی نظام تھی جو مجھے واپس میلکم ایکس کی طرف لے گیا۔ نظم و ضبط نے کس طرح اس کی زندگی بدلی یہ بالکل واضح تھا۔ اسلام کے 5 ستون ہیں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، اور پھر آپ کے پاس روزانہ 5 نمازیں ہیں، آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، سال میں 1 مہینے روزے رکھیں، اگر استطاعت ہے تو حج کریں، کعبے کی زیارت زندگی میں 1 دفعہ، بہت خوب، حلال اور حرام سب واضح ہے، اور ہاں حد بندی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی چاہیے، مجھے یہی نظم و ضبط چاہیے، بالکل میلکم ایکس کی طرح۔ اس نے میری زندگی کو سیدھے راستے میں ڈالنے میں مدد کی ہے، مجھے یہ پسند ہے، حتیٰ کہ پہلے سے ہی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہمیں فطرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قدرتی مزاج کو، فطری رجحان کو، وہ قانون جو ہر انسان میں تخلیق کیے گئے، یہ ہر ایک کے پاس ہیں۔ جب ہم دعویٰ دیتے ہیں، ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں، ہم مسلمانوں کو دوبارہ اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، فطرت یہی ہے، وہ اسے اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ جب آپ اپنی ماں کے بارے میں کہانی سناتے ہیں تو آپ دل سے محسوس کرتے ہیں، یہ فطری بات ہے، مجھے اور مذہبی بننا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلم ہیں تو ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے شاید تلاش یا صفائی کچھ زیادہ ہو، لیکن یہ یہی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے تب بھی محسوس کیا جب میں ملٹری جوائن کرنے گیا، کیونکہ میں نے خود کو سدھارنے کا ارادہ کر لیا، لہٰذا میں بحریہ جوائن کرنے گیا۔ میرے والد نے روکا کہ ٹھہر جاؤ، کچھ وقت لے لو، ایک دم اتنا سخت فیصلہ مت کرو۔ تو میں واپسی اسی جہالت میں چلا گیا، بازاری زندگی میں، اور پھر میں اسلام میں داخل ہوا۔ الحمدللہ۔ تو آخر میں میرے ساتھ اچھا ہی ہوا، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے یہی ڈسپلن اپنی زندگی میں چاہیے، تو یہ مجھے اسلام میں مل گیا۔ اور آخری چیز یہ مسئلہ تھا کہ بطور مسلمان عقیدہ رکھنا کافی نہیں، اور زیادہ تر مسلمانوں کو یہی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ تر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا یہی کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا مصنف نے واضح طور پر کہا اگر آپ کلمے پر عمل نہیں کرتے اور آپ کے افعال میں اس کا اثر نہیں ہے تو صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، پھر آپ بھی جہنم جا سکتے ہیں۔ تو میں نے اس چیز کو بہت منصفانہ پایا، عیسائیت کی طرح نہیں جس میں ہم یقین رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے فوت ہوئے، آپ یقیناً جنتی ہیں، لہٰذا ایک اچھا عیسائی وہ ہے جو بڑے پیمانے پر خیرات کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ تو کوئی بندہ جو مافیا میں ہے، قاتل ہے، لیکن اگر وہ عیسائیت پر یقین رکھتا ہے تو جب وہ مرتا ہے وہ بھی جنتی ہے، تو پھر اس صورت میں جہنم کون جانے والا ہے؟ ٹھیک، جہنم کس کے لیے ہے؟ تو میں نے اس کو بہت منصفانہ پایا کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، لیکن اس کلمے کو اپنے افعال میں بھی دکھانا چاہیے۔ لہٰذا میں نے وہ کتاب پڑھنے کے بعد فوری فیصلہ کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ اگلے ہی دن میں نے اپنے دوست کے والد کو بلایا جو کہ خود نو مسلم تھے، وہ مجھے واشنگٹن ڈی سی کے اسلامک سینٹر میں لے گئے اور میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ کیا آپ ہمیں وہ لمحات بتائیں گے؟ کلمہ پڑھنے سے پہلے میں بہت نروس تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، ایسے نہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، شہادت پڑھنا اور اللہ کو قبول کرنا وہ بھی انگلش میں، ایسے نہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں عربی میں پڑھنا ہوگا۔ اشہد کیسے کہوں؟ میرا ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو۔ میں نے کہا میں الفاظ نہیں بول سکتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اول درجے کا ہسپانوی، لیکن میں ان الفاظوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا، تو پھر میں اس غیر ملکی زبان کو کیسے یاد رکھ سکتا تھا؟ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، تو میں بہت نروس تھا۔ اس کے بعد میں نے وہیں مسلمانوں کے ساتھ اگلے وقت کی مغرب کی نماز پڑھی۔ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا اور میں واشنگٹن ڈی سی کے اسلامک سینٹر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں اپنے ساتھ کھڑے دوسرے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہوں، میری سونے کی زنجیر زمین کو چھو رہی ہے، میرے کانوں میں سونے اور ہیرے کی بالیاں تھیں۔ میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں بہت نروس ہوں۔ اس نے کہا فکر مت کرو، آگے آسانی ہوگی۔ اس نے کہا جو میں کر رہا ہوں وہی کرو، جیسے کہ عربی بول چال میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو حلوہ ہے، یہ تو حلوہ ہے، تو یہ واقعی زبان کے لیے حلوہ ثابت ہوا، بہت آسان، جب یہ زبان سے بہت ہی آرام سے نکلا۔ ایک حیرت انگیز احساس نے میرے اندر جنم لیا، ایسا لگا جیسے میرے اوپر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ جیسے ہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر بھائی چارے کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، مطلب آپ سے باتیں کرتا ہے، مبارکباد دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اور اسی قسم کی چیزیں، بہت ہی اعلیٰ احساسات ہیں الحمدللہ۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ میرے گھر والے میرے مسلمان بننے پر بہت خوش ہوئے، اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو اسلام سے میرے اندر آئیں، بہت مثبت تبدیلیاں۔ تو الحمدللہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے مجھ پر بہت اچھے اثرات مرتب کیے ہیں، اس لیے وہ اس بات سے بہت خوش تھے، اور شاید ان کا خیال تھا کہ یہ زیادہ عرصے تک نہیں رہے گا، لیکن مختصر مدت کے لیے ہی صحیح، میری یہ تبدیلی ان کے لیے خوش آئین تھی الحمدللہ۔ حتیٰ کہ اب بھی وہ تعاون کرتے ہیں، میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات ہیں الحمدللہ، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ۔ انہوں نے تو شروع سے ہی بہت تعاون کیا، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ میرے دادا جو کہ US ملٹری میں تھے، وہ دراصل اس انفینٹری سے تھے، وہ پہلی انفینٹری جو کہ ہٹلر کے زوال کے بعد دوسری جنگ عظیم میں جرمنی گئی تھی، اور وہ اپنے پرانے فوجی ساتھیوں کے ساتھ آن لائن بات چیت بھی کرتے تھے، اور آن لائن ہی نہیں فون پر بھی، اور وہ کہتے تھے، وہ ان کو بتا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا ہے، انہوں نے کہا مسلمانوں کے پاس آپ کو پتا ہے کہ مسجد ہے، قرآن ہے، وہ کہتے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے لیکن مجھے یہ پسند ہے، وہ کہتے لڑکا بدل گیا ہے، وہ کہتے یہ اب بہت اچھا ہو گیا ہے، یہ اب گھر میں رہتا ہے، رات کو دیر تک باہر نہیں رہتا ہے، اور گھر میں سب کی مدد کرتا ہے۔ تو وہ واقعی خوش تھے ان تمام تبدیلیوں سے جو مجھ میں ظاہر ہوئیں الحمدللہ۔ مسلمان بننے کے بعد آپ کو سب سے بڑا کون سا چیلنج درپیش تھا؟
میرے لیے تو یہ ایک لائف اسٹائل تھا، جس لائف اسٹائل میں تھا تو اس کو چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ بالکل باہر میرے دروازے کے سامنے تھا، میں آسانی سے اس طرف واپس جا سکتا تھا۔ لیکن دراصل مجھے میرے ایک دوست نے کچھ کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اسے دیکھو ذرا فلاں فلاں، کیونکہ میں اسلام قبول کرنے کے 1-2 دن بعد دوبارہ بازاری زندگی میں چلا گیا، اور پھر اس کے 9 دن بعد میں مسلمان بنا۔ تو اس نے کہا تھا اسے دیکھو یہ خود کو مسلمان کہتا ہے، اس نے کہا اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس بات کا مجھ پر گہرا اثر ہوا، اس کا یہ کہنا بجلی بن کر میرے دل پر لگا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا تم کیوں مسلمان ہوئے؟ یا تم اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے مسلمان نہیں ہوئے، زیادہ مذہبی بننے کے لیے؟ تو حقیقت میں 1-8 مہینے تک میرے اندر لڑائی چلتی رہی، میں اپنے پیٹ میں بیماری محسوس کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں الٹی کر دوں گا، کیونکہ میں اس جگہ جانا نہیں چاہتا تھا جو بالکل دروازے کے باہر تھی، لیکن میں اپنے اوپر زبردستی کرتا کہ باہر نہیں جانا، اور اپنے آپ کو زبردستی مسجد کی طرف دھکیلتا تھا۔ ہر بندہ جو خود کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے لیے بہتری چاہتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی بڑی مشکل ہے، آپ آرام سے اسے پار کر لیتے ہیں۔ مجھے کچھ یاد ہے، آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ خود ڈھالنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکل کا سامنا ہوگا، اور ان تمام میٹھی چیزوں سے اور ہر چیز سے جو آپ کے پاس ہے ہاتھ دھونا پڑیں گے، لیکن آخر میں آپ خوشی کو پا لیں گے۔ تو بعض اوقات آپ کو وہ خوشی پانے کے لیے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور میرے لیے یہ مشکل الحمدللہ زیادہ دیر تک نہیں تھی، 1-1.5 مہینے کا عرصہ تھا، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے تو یہ ایسا نہیں تھا۔ میرے آس پاس مسلمانوں سے مجھے بہت مدد ملی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں سب سے پہلی چیز جو قائم کی تھی وہ دارالارقم ابن ابی الارقم تھا، جو 9 مسلموں کے لیے ایک چھوٹا سا سینٹر تھا مکہ کے اندر 9 مسلموں کا خیال رکھنے کے لیے، لہٰذا وہ مل کر آتے اور ایمان سیکھتے اور اپنے عقائد مضبوط کرتے۔ تو الحمدللہ اگر آپ اسی پر دوبارہ نظر ڈالیں تو شاید اسی چیز نے بہت زیادہ آسانی پیدا کی، اگر مجھے وہ ماحول نہ ملا ہوتا تو میں کیا کرتا۔ الحمدللہ پہلا بندہ جسے آپ نے دعوت دی وہ کون تھا؟ پہلا بندہ جسے میں نے دعوت دی وہ میرا قریبی دوست تھا، جو اس وقت تمام مسئلوں کی جڑ تھا۔ جب ہم بری چیزوں کی بات کر رہے تھے میں آیا اور اسے بھلائی کی طرف بلایا الحمدللہ، اور اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ نہیں، وہ جس سے ہم نے ڈرگز ڈیلنگ اور اس سب کے بارے میں بات کی تھی، ڈرگ ڈیلر کا بیٹا نہیں بلکہ دوسرا والا، جس نے مجھے پہلے یہ سب سکھایا، دوسرے بندے کے پاس جانے سے پہلے جس نے مجھے یہ سب چیزیں سکھائیں، شروع میں یہ سب کچھ اپنے بھائی اور کزن سے، تو وہ پہلا بندہ تھا جسے میں نے دعوت دی۔ الحمدللہ ہم بہت گہرے دوست تھے، اس نے شہادت دی، لیکن اس کا سفر میرے جیسا نہیں تھا، مطلب وہ تھوڑا گمراہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے اب بھی امید ہے کہ وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کو دعوت دی، جن میں سے کئی نے اسلام قبول کیا، جبکہ کچھ نے سننے سے بھی انکار کر دیا، کچھ نے سنا، ایک نے مجھے کہا وہ 1 سال کے عرصے تک اسلام قبول کرے گا، کیونکہ وہ اپنی عیاشی میں بہت مصروف تھا۔ تو یہ کہ میرا ان پر اچھا اثر پڑا، میں نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کی، زیادہ توجہ میں نے اپنی دادی کو دی، کیونکہ میری دادی وہ انسان ہے جنہوں نے مجھے پروان چڑھایا۔ جب میں 5 سال کا تھا تو میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی، تو دادی ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ اس وقت ہم کل 6 بچے تھے، میرے بھائی کزن وغیرہ کو ملا کر 4 ہم بہن بھائی اور 2 میری آنٹی کے بچے، تو اس وقت صرف 4 تھے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، میرے ایک بہن اور بھائی میرے بعد آئے، لیکن میں اس وقت بہت چھوٹا تھا اور بہت بگڑا ہوا بچہ تھا، میں اپنی دادی سے بہت ہلا ہوا تھا۔ تو اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، وہ ویل چیئر پر تھیں، لیکن میں اس بات کو یقین نہیں بناتا کہ جب میں قرآن پڑھوں، میرا سفر قرآن کے ساتھ تھا، تو میں اس کو زور سے پڑھتا تھا تاکہ وہ مجھے یہ پڑھتے ہوئے سن سکیں۔ اور جب میں نے ان کو اس بارے میں بتایا کہ ہم اسلام میں کس چیز پر یقین رکھتے ہیں اور بطور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو وہ حیرت زدہ رہ گئیں، ایسا جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ تو ان کے اثرات کچھ ایسے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ جب ایک دفعہ میں ان کو غسل میں مدد دے رہا تھا، میں نے ان سے کہا کیا آپ کو ان سب باتوں پر یقین ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا میرے ساتھ دہرائیں۔ میں نے ان کو ایمان کی گواہی کی وضاحت دی، اور پھر میں نے ان کو عربی میں کلمہ پڑھایا، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ پڑھا الحمدللہ۔ اس کے بعد میں سفر پر نکل گیا، اور پھر مجھے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں نے عالموں سے پوچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ بطور مسلمان فوت ہوئی ہیں، ان کا کلمے پر یقین تھا، حتیٰ کہ اگر وہ عمل نہ بھی کر سکیں، کیونکہ اس وقت تک وہ بہت ضعیف ہو چکی تھیں، 1-2 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن میں دوسرے ملکوں گھومتا رہا، اس لیے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہ مل سکا، لہٰذا میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میری دادی میرے والدین کے ساتھ بھی تھی، لیکن ان کی ذات کا مجھ پر گہرا اثر تھا۔ الحمدللہ انہوں نے بھی کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ آپ دعویٰ دینے کے لیے بہت سے ممالک گئے، تو کیا آپ کو کوئی ناقابل فراموش واقعہ درپیش آیا؟ الحمدللہ بہت سے واقعات ہیں، میرے خیال سے اگر ہم بتانا شروع کریں تو ہم اس پر پوری ایک قسط بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کو اتنے واقعات بتاؤں گا، لیکن فی الحال تو میں آپ کو ورلڈ کپ کی 2 مختصر کہانیاں سناؤں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ ورلڈ کپ میں نے دعویٰ کے لیے شرکت کی، مجھے ایک بہن سے فون کال موصول ہوئی جو کہ خود بھی دعویٰ کا کام کرتی تھی، قطر سے ایک بہن۔ اس نے کہا کہ ایک 6 سالہ امریکی بچہ ہے جو کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا 6 سالہ بچہ، اس کو کیا سمجھ ہے اس بات کی، مطلب 6 سال کا بچہ، یہ کوئی مذاق ہے؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، اور میں سوچ رہا ہوں کیونکہ بہت مصروفیت تھی، تو میں سوچ رہا ہوں میں وہاں جاؤں گا، 6 سال کا بچہ، یہ کس طرح ہوگا؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے عبد الرحیم گرین سے رابطہ کیا اور کچھ دوسرے بھائیوں سے، میں نے جان فونٹین کو بتایا، وہ بھی وہیں تھے، اور کچھ دوسرے قریبی بھائیوں کو بتایا کہ کسی کو ایسا تجربہ ہوا، حتیٰ کہ ہمارا اپنا دعویٰ کا گروپ تھا۔ میں نے کہا کسی کو ایسا تجربہ ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا توقع رکھنی چاہیے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا توقع رکھوں۔ تو میں وہاں گیا، اور جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، بچے کی والدہ جو کہ بظاہر بہت تعاون کرنے والی تھیں،
पहले खुद उनको इस्लाम से वाकफियत हासिल करनी चाहिए। चूंकि बच्चा सीख रहा है तो माँ को भी सीखना पड़ेगा। माँ क्यों नहीं कबूल कर रही? अगर बच्चा कबूल कर रहा है तो मैं शुरू में इन दोनों के साथ बैठा। वालदा ने मुझे बताया कि वो काफी अरसे से कुवैत में पढ़ाती रही हैं, अब वो कतर में है और वो यहाँ बहुत खुश हैं और वापस कभी भी अमेरिका नहीं जाना चाहती। और बच्चे ने कहा कि वो मुसलमान बच्चों में रहता है, उसके सारे दोस्त मुसलमान हैं और जिस तरह उसने पहली जमात की इस्लामियत के असबाक पढ़े तो इससे इस पर गहरा असर पड़ा और उसके साथ ही उसने मुसलमान होने का फैसला किया। और वालदा ने कहा इसने मुझे अपने साथ लगाकर रिसर्च करवाई, इस्लाम के बारे में पढ़वाया और मैंने उसको सिखाया। मतलब वो अपने बच्चे के लिए रिसर्च करके उसको दे रही थी, लिहाजा बच्चा पूरी तरह कायल है। और फिर उसने बच्चे से सवालात करना शुरू किए, जैसा कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया है तो सिर्फ वही एक है जो इबादत के लायक है। मतलब अल्लाह ताला पर उसका यकीन था और मैं हैरत ज़दा रह गया। वो सिर्फ 6 साल बच्चा था। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। और उसको इस्लाम से मुतालिक अच्छी खासी मालूमात थी और अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा थी, बिल्कुल समझदार लोगों की तरह। ये बहुत ज़हीन है, माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। तो मैंने कहा ठीक है, इसको अच्छी तरह पता है कि वो क्या करना चाहता है। वालदा ने कहा दर हकीकत ये मुसलमान बनना चाहता है तो मैं इसका साथ देना चाहती हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा वो ईसाई हैं लेकिन मैं उसका साथ देना चाहती हूँ। अगर यही उसकी ख्वाहिश है तो मैं पूरी करना चाहती हूँ, मैं उसको मुसलमान बनाना चाहती हूँ अगर ये यही करना चाहता है। वालदा ने कहा मैंने खुद उसे सिखाया, खुद उसे कायल किया है। उन्होंने कहा कि वो काफी अरसे तक इस सिलसिले में अपने बच्चे से बात करती रही हैं, यही उसकी ख्वाहिश है तो मैं पूरी करना चाहती हूँ। इस बच्चे से बात करने पर मालूम हुआ कि वो वाकई समझदार है और वाकई कायल हो चुका है। उसने बहुत सी गलत फहमियों के भी जवाब दिए जो कि इस उम्र में मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने कलमा शहादत पढ़ लिया, मतलब ये बहुत शानदार था। उस वक्त मैं और मेरी एक बहन जो कि हमारे साथ थी वो एथोपिया से थी, तो हम फौरन वालदा की तरफ मुड़े और कहा कि आपका अपने बारे में क्या ख्याल है। और यही सवाल शुरू से मेरे जहन में था, आपने ही सारा काम किया, इसके साथ रिसर्च की, तो आपको भी इस्लाम के बारे में मालूम होना चाहिए। वालदा ने जवाब दिया मैं इस्लाम पर यकीन करती हूँ और मैं पूरी तरह से कायल हूँ, लेकिन मैं मजीद रिसर्च करना चाहती हूँ, मुझे खास वक्त का इंतजार है। बहुत से मुसलमानों को गलत फहमी होती है, खास वक्त, खास ये वो। मैंने कहा देखें आपको इससे ज्यादा खूबसूरत वक्त नहीं मिलेगा, मेरा भरोसा करें। हकीकत तो ये है कि अगर आप अपने बेटे के साथ ही कलमा शहादत पढ़ लें तो ये एहसास बहुत खूबसूरत होगा। हमने उनसे इस पर मजीद गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा आप लोग ठीक कहते हैं, ये एक यादगार दिन बनने जा रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ ही कलमा शहादत पढ़ रही हूँ, लिहाजा उसने भी कलमा शहादत पढ़ लिया। ये एक नई कहानी थी, सुभान अल्लाह, जो मैंने अभी तक किसी को नहीं सुनाई, तो आप लोग पहले हैं जिन्हें मैं ये सुना रहा हूँ। ये बहुत शानदार कहानी थी, सुभान अल्लाह, बहुत जज्बाती। वहाँ मौजूद बहनें और सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास कुछ खूबसूरत तस्वीर भी हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। उन्होंने इसके स्कूल में एक बड़ी सी पार्टी भी की, बहुत से तहाइफ दिए। ये बहुत खूबसूरत वक्त था, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं फिलहाल यहाँ इस्तांबुल में हूँ। यहाँ हमारी सहाबा अकेडमी है जो तरबियत पर फोकस करती है। हम अपना ज़्यादातर काम अरबी में करते हैं, हम कुछ प्रोग्राम अंग्रेजी में भी कर रहे हैं। मैं अंग्रेजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ और अकेडमी के बड़ों में से एक हूँ। मैं मुख्तलिफ दावा प्रोजेक्ट्स में ईरा के साथ काम करता हूँ। अब हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं अपने भाई अदनान रशीद के साथ अफ्रीका में ही था। अफ्रीका में तंजानिया और मलावी में अच्छा ट्रिप रहा और मैं वन उम्मा चैरिटी के साथ भी काम कर रहा हूँ। मैं उनका एम्बेसडर हूँ और चैरिटी का शेख हूँ, तो मैं उनके साथ भी बहुत से काम करता हूँ। अभी हम लबनान में बॉर्डर पर शामी पनाह गजीनों के साथ थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही अहम चीज़ें हैं जो कि मैं करता हूँ और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही कुछ अहम चीज़ें हैं। अगर आपके पास सिर्फ 1 मिनट हो और आप पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को कोई पैगाम देना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा अपने इन तजर्बात की बिना पर जिनसे मैं गुजरा और तमाम नौ मुस्लिम गुजर रहे हैं और हमने ईमान की मिठास किस तरह पाई, आप लोग आकर खुद इसका तजर्बा करें। सिर्फ सुनी सुनाई पर ना चले। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे करीबी रिश्तेदार ने कहा मुसलमानों की मत सुनो, मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और उसने और भी बहुत सी गलत बातें की, लेकिन मैंने उसको नहीं सुना। मैंने खुद जाकर मुताल्ला किया और मैंने सच्चाई को खुद पा लिया। मुझसे बहुत से मुसलमान ऐसे मिले हत्ता कि वो इस्लाम कबूल भी नहीं करते, तो कम से कम उनको पता होता कि इस्लाम क्या है। तो मैं हमेशा उनको यही करने को कहता हूँ, बराहे करम मीडिया जो हमारे बारे में कहता है उसे मत सुने, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उसे भी मत सुने। हम तकरीबन 2 बिलियन हैं, हम बहुत सारे हैं, हमें हमारा हक दें। बतौर आपके कुलीग, बतौर पड़ोसी हमारे अकीदे को समझने का हक, बतौर मुसलमान हमारी बात सुने और हमें समझने के लिए खुद मुताल्ला करें। वो ना पढ़ें जो गैर मुस्लिम हमारे बारे में कहते हैं, वही पढ़ें जो मुसलमान अपने बारे में बताते हैं। हमारे साथ ताल्लुक रखें, हमसे मिलें। इसीलिए हम सेंटर्स की मौजूदगी पर खास तवज्जो देते हैं। हम अपने दरवाजे उनके लिए खुले रखते हैं ताकि वो आएं और हमें सुने। हमारे पास दावा की टेबल्स हैं, हमारे मालूमाती स्टॉल्स, आप उन्हें दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों के सेंटर्स में कॉल कर सकते हैं जहां लोग आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ तुर्की में सुलेमानिया, आया सोफिया में ये मालूमाती सेंटर्स मौजूद हैं जहां लोग आकर मुसलमानों के साथ बैठ सकते हैं और खुद उनको सुनते हैं, खुद तजर्बा करते हैं और इस्लाम सीखते हैं और फिर अपने लिए खुद फैसला करते हैं, जैसा कि हम सब करते हैं। अगर वो यकीन कर लेते हैं कि यही सच्चा मजहब है तो बिस्मिल्लाह, फिर पैरवी करते हैं, और अगर नहीं करते तो कम से कम आप बराह रास्त मुसलमानों से ही समझते हैं कि इस्लाम दर हकीकत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह।